Hello, class 5th students. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your lecture number 2 on chapter number 2, addition and subtraction. In our first chapter, also, we have just revised our fourth class, and in this chapter, with some new kind of presentation of numbers like in Hindi format, we do the same thing what we have did in our previous class as addition and subtraction. Okay, so this chapter will also be going to be easy with some new concepts. Okay, a little bit of. So in our last class, suppose we have learned that if we find similar operations, okay, in fact multiple operation in an equation, then what we have to do, we have to solve in this series left to right. Okay, for example, you have multiplication, addition and subtraction all combined operation in a single equation, then how you have to give the priority according to this formula. Okay, so in case if you have divide in this equation, then you have to first of all do division. Okay, then you have to go move to next step to solve the next steps of the question. Okay, similarly, first of all you have to give priority to division, then multiplication, then addition and then subtraction. Okay, so suppose in this question we have both addition and subtraction, two operations included. So whenever you have more than one operation included in a single equation, you have to follow this BODMAS rule. Okay, this BODMAS rule you have to follow. So what it says, if you have addition and subtraction in the same question, what you are going to do first, you have to give the utmost priority to addition. You have to first of all add the numbers, right? And when no addition operation is left, then you can move forward to do subtraction. Okay, so in this question also we have two positive sign numbers, so we'll first of all add them and then subtract whatever the result will come out after adding them, and we'll subtract 199 from that. ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी इक्वेशन में एक साथ एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो, कि एडिशन भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, कोई से भी दो तीन चारों ऑपरेशन, कितने भी ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन हमको कौन सा रूल फॉलो करना है, BODMAS वाला। आप चाहें तो साइड में लिख भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से BO ना भी लिखें तो चलेगा, आपको DMAS याद होना चाहिए, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या क्या है, प्लस है और माइनस है, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जिस नंबर के पहले जो साइन होता है वही उसका साइन होता है, और जिस नंबर के पहले कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे किसका साइन है, यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। अगर 364 के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का साइन है। ऐसे 473 के पहले कोई साइन नहीं था तो मतलब प्लस का साइन था। प्लस आप लिखो या ना लिखो, सबसे लेफ्ट वाले नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है। तो जो भी सेम सेम साइन वाले होते हैं उनको हम पहले ऐड करते हैं। क्या बोला मैंने, जो भी सेम सेम साइन वाले होते हैं उनको पहले हम ऐड करते हैं। ऐड करने पे जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से 199 माइनस करेंगे, क्योंकि हमको कौन सा रूल पता है, BODMAS रूल, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में एक साथ एक से ज़्यादा ऑपरेशन आ जाएं तो आपको किस सीरीज़ में सोल्व करना है, इस सीरीज़ में। सबसे पहले डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई भी नहीं है तो एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ रहे हैं, तो पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। एडिशन भी आपको आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। सो विल क्विकली मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले आपको बच्चों CW डेट डालनी है आज की। ब्लैक पेन से ये पूरा क्वेश्चन लिखना है, रो फॉर्मेट में। सॉल्व करेंगे हम कॉलम फॉर्मेट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम साइन वालों को प्लस करेंगे। तो पहले 364 में 67 हम प्लस करेंगे, ठीक है। 7 में हमको क्या प्लस करना है, 4। तो पहले जो छोटा नंबर है दोनों में से वो काउंट कर लो, 1 2 3 4। 7 और 4 में 4 छोटा होता है, 4 कहाँ पे आया, यहाँ पे। और काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं हम, बड़े वाले के बाद से। बड़ा कौन है, 7, तो 7 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 8 9 10 11, ठीक है बच्चों। प्लस करना अब आपको आना चाहिए। 11 का मतलब 1 का जाएगा कैरी में और एक 1 आएगा नीचे। 1s वाला 1 यहाँ पे, 10s वाला 1 कैरी में, ठीक है। बेसिक मैथ्स की क्लासेस भी आपकी चल रही है बच्चों। जिन बच्चों को एडिशन अच्छे से नहीं आता है वो वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू नो दिस बेसिक।
6 + 1 7, 7 में आप 6 प्लस करोगे तो आपका आएगा 13। कोशिश करिए बच्चों, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से प्लस करना है। जब आप खुद से अपने हाथों से करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, और आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती जाएगी। फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं आंसर्स को, ठीक है। 3 + 1 4। इसका मतलब जब हमने 364 में 67 प्लस किया तो क्या आया हमारे पास, 431 आया। अब हमको 431 में से क्या माइनस करना है, 199 माइनस करना है, ठीक है बच्चों। अभी मैं स्पेस, ताकि आपके कैमरे में ये पूरा पेज आ जाए, सो आई एम डूइंग ओवर हियर। यू कैन ऑल्सो यू हैव टू, आपको इसके नीचे से लिखना है, ठीक है, यू हैव टू राइट बीनीथ इट, ओके। सो आपको पहले इक्वेशन पूरी लिखनी है, ठीक है। 364 प्लस 67 माइनस 199, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इन दोनों को हमने प्लस किया तो कितना आया, 431, ठीक है। इसमें से हमको कितना माइनस करना है, 199। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 431 आया। तो कुल मिला के हमको कितना माइनस करना है, 431 माइनस 199। आप चाहें तो साथ में राइट में, आप चाहें तो पेंसिल से लिख सकते हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि बहुत इजी है, आपको याद होना चाहिए कि पहले क्या करते हैं। फिर भी आप साइड में लिख सकते हैं कि पहले मुझे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन। बच्चों अगर यहाँ पे एक और कोई प्लस का होता तो पहले फिर अब से हम प्लस करते फिर माइनस पे जाते, ठीक है। ये जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के हमको कितना माइनस करना है, 431 माइनस 199, ठीक है ना। 1 में से 9 नहीं जा सकता तो 1 क्या कहेगा इस 3 को, प्लीज़ गिव मी यू 1। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 माइनस करना आपको आना चाहिए। 1 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। मतलब 11 में से 9 माइनस करना है, ठीक है। तो काउंटिंग किसके बाद से बोलनी है, 9 के बाद से। कहाँ तक बोलनी है, 11 तक। 9 के बाद क्या आता है, 10 और 11। तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई हमारे पास, 1 और 2। तो इसका मतलब 11 में से 9 माइनस हुआ तो कितना है हमारे पास, 2। 2 में से 9 नहीं जा सकता, ये वाला 2 किससे मांगेगा, इस वाले 4 से। तो इस वाले 4 के पास कितना रह जाएगा, 3, और ये वाला 2 क्या बन जाएगा, 12, ठीक है। अब 12 में से 9 जाएगा तो 3, 10, 11, 12, ठीक है। माइनस करना आपको आना चाहिए, 1, 2, 3। और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 3, तो 3 में से बन गया 2। इसका मतलब बच्चों आपको यहाँ पे एक साइन लगाना है, ये वाला। इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा साइन होता है, इम्प्लाइज दैट। मतलब इसको सोल्व किया तो ये आया, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का साइन होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। मैथ्स में हम बच्चों सिंबल यूज़ करते हैं ताकि हमें कम से कम लिखना पड़े। यस, सो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 232, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ ऐसे किया है, आपको कैसे करना है, एक के नीचे एक, इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, और साइड में इस तरह से माइनस करना है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया तो पहले ये आया, फिर इसमें से हमारे पास 199 माइनस हो गया तो कितना आया, 232 आया। बस आपको ये रूल पता होना चाहिए। पहले क्या करते हैं, एडिशन, सिंपली ऐड करना है, ऐड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 431 आया ऐड करने पर, तो 431 लिख दिया। मतलब इन दोनों को मिला के कितने नंबर बन रहा है, एक नंबर बन रहा है, ठीक है, 431। और माइनस 199 का माइनस 199। अब हम माइनस कर सकते हैं, तो आपको इसके आगे लिखना है आंसर, ठीक है बच्चों। कोशिश कीजिए आप खुद के हाथों से कीजिए, जब आपका खुद का दिमाग काम करेगा, खुद के दिमाग से आप करेंगे, हाथ से करेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में भी आएगा और आपको अच्छी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी थोड़ा ऐसा ही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 37 माइनस 15 प्लस 10। इस बार इसने क्या किया, माइनस वाला बीच में ले आया और प्लस वाले लेफ्ट और राइट में रख दिए। तो कोई बात नहीं, हमको तो रूल पता है। क्या पता है कि किसी के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस का साइन है। तो मतलब 37 भी प्लस का हो गया और 10 भी प्लस का हो गया। तो पहले सेम साइन वालों को प्लस करना है, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। किन का करेंगे, 37 और 10 का। फिर जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसमें से क्या करेंगे, 15 को माइनस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ बच्चों प्रोसेस आपको शुरू में सोचनी है खुद से, ठीक है, कि सेम साइन वालों को मुझे प्लस करना है और फिर आपको क्या करना है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ठीक है। नाउ तो 37 में जब आप 10 प्लस करोगे तो 7 + 0 7 और 3 + 1 4, ठीक है। उसके बाद 37 + 10 कितना है हमारे पास, 47। हमने प्लस 10 को, 10 जो आपका राइट साइड में लिखा हुआ था उसको हम कहाँ लिया है, यहाँ पे लिया है, ताकि हमको समझना ईजी हो जाए। और माइनस 15 को इसके बाद में लिख दिया। तो 37 में जब 10 प्लस किया तो कितना आया, 47,
ठीक है। अब हमको 47 में से 15 माइनस करना है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है बच्चों, बस इसमें माइनस वाला यहाँ लिखा हुआ था, इसमें माइनस वाला बीच में लिखा हुआ था, तो हमने इसको पहले इस तरह से अरेंज कर लिया ताकि हमको ये पता रहे कि प्लस प्लस वालों को प्लस करना है और फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें से 15 को माइनस करना है। ठीक है, तो हम जो 47 आया है उसमें से क्या करेंगे, 15 को माइनस करेंगे। 7 में से 5 गया तो 2 आता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 5 के बाद से, नीचे वाले के बाद से बोलते हैं काउंटिंग सब्ट्रैक्शन में, कब तक, जब तक ऊपर वाला ना आ जाए। तो 5 के बाद क्या आता है, 6 और 7 आ गया 7, तो कितनी लाइन्स हुई, 1 and 2, तो 2 और 4 में से 1 गया तो 3, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 32। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आंसर। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या डालना है, सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन 9, सॉल्यूशन 8, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आंसर का लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, जब हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, सो कुल मिला के आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम सेम साइन वाले को पहले एडिशन करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले एडिशन करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, और ये कौन सा साइन होता है, इम्प्लाइज दैट का, जितनी बार हम यूज़ करेंगे आपको इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको अब यूज़ करना सीखना है। ठीक है बच्चों, मैंने इस तरह से इसलिए किया है ताकि आपका एक पेज पे हम देख सकें। आपको क्या करना है, प्लस के बाद माइनस और फिर इसको भी आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि 37 + 10 किया तो -15 आया, फिर 47 - 15 किया, तो ऐसे आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं टू सेव द पेज। ओके, बट यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। नाउ नेक्स्ट बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 185 boys and 162 girls are studying in government higher secondary school। ठीक है, उदलियास कोई गांव होगा वहाँ पर, लेकिन हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कितने बॉयज़ हैं, 185 बॉयज़ एंड 162 गर्ल्स। कहाँ पढ़ रही है अभी हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इतनी जिसको इंग्लिश कम भी आती है वो ये तो सीमा समझ सकता है कि 185 बॉयज़ हैं और 162 गर्ल्स हैं जो पढ़ रही हैं किसी स्कूल में। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द टोटल नंबर, क्या बोल रहा है, टोटल नंबर क्या होगा किसका, स्टूडेंट्स का, स्टडिंग इन दिस स्कूल। टोटल वर्ड जब भी यूज़ हो जाए बच्चों तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको समझ जाना है मुझे प्लस ही करना है। ठीक है, आप में से कई बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को देख के सोचते हैं प्लस करें या माइनस, तो आपको बस थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी टोटल वर्ड यूज़ करेगा तो आपको पता होना चाहिए मुझे टोटल निकालना है, मतलब मुझे क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है इतने बॉयज़ और इतने गर्ल्स एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बताओ टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो टोटल बच्चे कैसे निकालेंगे, इनको और इनको प्लस करके। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लू पेन से सॉल्यूशन 10। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन स्कूल, स्कूल में कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ है 185, और कितनी नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं 162, और सिंपली आपको प्लस करना है। ठीक है, जो हम सेकंड क्लास से करते आ रहे हैं, 5 + 2 7, 8 + 6 आप निकालोगे तो 14 आएगा। ठीक है, 1 कैरी में और 4 यहाँ पर, खुद से करना है बच्चों, को कॉपी नहीं करना है। क्वेश्चन हमको समझ में आ गया, बस टोटल नंबर निकालना है। ठीक है, टोटल नंबर निकालना है मतलब प्लस करना है, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3। ठीक है, सो टोटल देयरफॉर, ये किसका साइन होता है बच्चों, देयरफॉर का। देयरफॉर का साइन हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर। हम बच्चों मैथ्स में अब लिखते नहीं हैं, ठीक है ना, हम ऐसे सिंबल बनाते हैं। आप सिंपली डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से डॉट 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 3 डॉट्स, और इसको उल्टा करके लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज। ठीक है, आप चाहें तो किसी रफ कॉपी में अपनी मैथ्स रफ कॉपी बना सकते हैं, उसमें ऐसी टर्म्स लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहती है तो। वैसे हम जितनी बार यूज़ करेंगे हमको याद होती जाएगी। इसको देयरफॉर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बिकॉज। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, सीधा ट्राइंगल मतलब देयरफॉर, उल्टा ट्राइंगल मतलब बिकॉज। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए हमारे पास, 347। आंसर इजी। ऐसे क्वेश्चन हम बचपन में कर भी चुके हैं। नाउ 11th क्वेश्चन है आपका, इन अ गार्डन, एक गार्डन है उसमें क्या है 255 रोजेज हैं। ठीक है, 156 मैरीगोल्ड हैं, 178 जैस्मिन प्लांट्स हैं, आर देयर।
व्हाट इज़ द टोटल, फिर से टोटल वर्ड आ गया बच्चों, तो आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमको एडिशन करवा रहा है। टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर्स आपको बता रखे हैं 255, 156, 178, तो बताओ टोटल प्लांट्स कितने हुए। तो क्या करोगे, तीनों को प्लस कर दोगे। इस वाले क्वेश्चन में 2 नंबर प्लस करवाए थे, इस बार 3 नंबर प्लस करवा रहे हैं। तो सिंपल हम लैंग्वेज लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन 11 डाल के 255 रोजेस प्लांट्स हैं, 156 मैरीगोल्ड प्लांट्स हैं, 178 जैस्मिन प्लांट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितना प्लांट्स आएगा हमारे पास। इस बार आपको एक साथ 3 नंबर प्लस करना है, प्लस आप बच्चों आपको खुद से करना है, मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको खुद से काउंट करना है। जब तक आप खुद का दिमाग यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो केवल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद से समझना है ताकि आपको खुद से प्रैक्टिस होती जाए। सिंपली हमको प्लस करना है यहाँ पर। क्यों करना है प्लस, क्योंकि टोटल पूछ रहा है। आपके गार्डन है घर में, उसमें अगर इतने रोजेज़ होते, इतने मैरीगोल्ड होते, इतने जैस्मिन होते, तो टोटल कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस करके। तो वही हम कर रहे हैं। 8 + 6 14 होता है, अभी हमने किया था, और 14 + 5 19 होता है। तो 1 यहाँ पर और 9 नीचे, कैरी में जाएगा 1 और 9 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 5 + 1 6 होता है, और 6 + 5 11 होता है। या आप 5 + 5 पहले 10 कर लो, फिर 10 + 1 11 कर लो, जैसे आपको ईजी लगे। ठीक है, अब आपको बच्चों डोजिंग थोड़ी सी आनी चाहिए कि जल्दी से आपको 5 + 5 5 + 6 कितना होता है। ठीक है, सो 11 + 7 18 होता है, ये आपको खुद से प्लस करना है, 1 कैरी में और 8 यहाँ पर। फिर 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5। तो कुल मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आ गए, 589। दिस इज़ आवर आंसर। लैंग्वेज बच्चों बहुत इजी है वैसे लिखना, आपने बस ये आप डिनोट कर सकते हैं सिंपली कि ये रोजेस प्लांट्स हैं, मैरीगोल्ड प्लांट्स हैं, यहाँ प्लांट्स कर लेना, ये सब प्लांट्स हैं, फ्लावर्स नहीं है। ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज write language as much short as possible, okay, and then you can proceed with your question। ठीक है बच्चों, लैंग्वेज आपकी थोड़ी बहुत गलत भी हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक तो मैथ्स में इतना काउंट नहीं होता है, बट आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन आपको सही से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइम गीताज फादर इज़ एट द मार्ट टू सेल पोर्ट्स। एक मार्ट में गीता के फादर हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या बेचना है, पोर्ट्स, मटकियाँ बेचनी हैं। ठीक है, सो दिस टाइम हर फादर बिल्ट 523 पोर्ट्स। बच्चों ध्यान से समझना, उसके फादर ने क्या किया, 523 मटकियाँ बनाई हैं। ठीक है, ऑफ विच 484 वर सोल्ड आउट। और उसमें से ऑफ विच, किस में से, इसमें से कितनी सोल्ड आउट हो गई, कितनी बिक गई, 484 बिक गई। तो बताओ देन हाउ मैनी पोर्ट्स आर लेफ्ट अनसोल्ड, तो बताओ कितनी नहीं बची, बिकी। सपोज हम इसको छोटे पार्ट, एक छोटे नंबर में तोड़ लेते हैं। सपोज़ अगर गीता के फादर के पास 4 मटकियाँ बनाई होती और उसमें से 3 बेच देता, तो कितनी बचती, जो नहीं बिकी है, जो सोल्ड आउट नहीं हुई है, 1। ये हमने कैसे निकाला बच्चों, प्लस करके या माइनस करके, माइनस करके। क्यों, क्योंकि अगर वो 4 मटकियाँ बेचने गया है और 3 बिक गई, और ये पूछ रहा है कि कितनी नहीं बिकी, तो कितनी बिक गई, 3 बिक गई, तो कितनी बची, 1। तो हमेशा आप क्वेश्चन को इस तरह से भी शॉर्ट में या उनको टुकड़े में तोड़ के या कम नंबर को कम करके भी आप खुद से समझ सकते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और हमें क्या निकालना है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, इंग्लिश बच्चों अब आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, है ना, अच्छे से, कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको अगर ये समझ में आ जाएगा वो क्या पूछ रहा है, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 523 पोर्ट्स बना लिए, 523 मटकियाँ बना ली हैं, और 484 उसमें से बेच दी है। तो कितनी नहीं बेची वो कैसे निकालेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करके, और बड़े में से ही छोटा माइनस होगा। तो 523 में से कितना माइनस करेंगे, 484। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल पोर्ट्स कितनी थी उसके पास, 5। शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो आपके पेज में भी फिर शॉर्ट पड़ेगा, इसलिए हम शॉर्ट एंड स्वीट लिखेंगे। टोटल पोर्ट्स कितनी है, 523। कितनी सोल्ड आउट हो गई, 484। इतनी थी और इतनी बेच दी, तो कितनी नहीं बेची, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और माइनस करना हम सभी को आना चाहिए। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन लिखना है बच्चों, ब्लू पेन से आपको सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ 3 में से 4 जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि 3 छोटा है 4 से। तो 3 किससे लेगा, 1 2 से लेगा, तो 2 के पास कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और 3 कितना बन जाएगा, 13। इसका मतलब हमको काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 4 के बाद से, और कहाँ तक बोलनी है, 13 तक। तो
4 के बाद क्या आता है 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 का आया यहाँ पर, यहीं पे थंब को रोक दो ताकि हमारा आंसर गलत ना आए। कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 13 में से 4 गया तो कितना आता है 9 आता है। अब फिर से 1 में से 8 नहीं जा सकता, ये 1 किससे लेगा 5 से 1 लेगा, तो 5 के पास कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा, क्योंकि अपने अंदर से 1 दे देगा। 5 अगर 1 दे देगा तो कितना हो जाएगा वो 4, तो ये 4 बन गया। और ये 1 कितना बन जाएगा अब 11 बन जाएगा। ठीक है, माइनस करना आपको आना चाहिए। 11 में से 8 माइनस करना है, मतलब काउंटिंग सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं नीचे वाले के बाद से बोलते हैं जब तक ऊपर वाला ना आ जाए। तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 10 11 आ गया 11, ऊपर वाले तक की काउंटिंग बोलनी है। तो टोटल कितनी लाइन्स हुई 1 2 3, तो 11 में से 8 गया 3 और 4 में से 4 गया तो 0। तो पहले कितने भी 0 आए उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, इट डजेंट मैटर। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 39। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मैनी पोर्ट्स आर लेफ्ट अनसोल्ड। ठीक है, सो विल राइट 39 पोर्ट्स रिमेन अनसोल्ड, इतनी नहीं बिकी। ठीक है, आंसर देयरफॉर का साइन लगा देंगे, देयरफॉर 39 पोर्ट्स रिमेन अनसोल्ड, इतनी पोर्ट्स नहीं बिकी। ठीक है बच्चों, so in this way you have to analyze that you have to do subtraction or addition of word problems. Okay, so that's all for today. In our next class we'll take on this Indian numbers. वही करना है बच्चों, फिर से प्लस और माइनस, बस नंबर की जो बनावट है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि ये इंडियन नंबर्स हैं। तो हम सीखेंगे आपकी 5th क्लास में बोर्ड में हिंदी नंबर्स कैसे लिखते हैं, और हिंदी नंबर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वैसे ही होता है जैसे हम करते आए हैं, बस हमको क्या याद रखना है हिंदी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में विल टेक ऑन दिस 13th क्वेश्चन। ओके, सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।